So, Noam Chomsky, I was talking, he gave the theory of universal grammar also. And I was asking you all one question that how the language is acquired nowadays by the children. What do you think? That which theory is used or how it is acquired? You have studied the schema theory also and other concepts also related to language. So just tell me how the mother tongue is acquired by a child. Through home, mostly at home, Okay. Okay. through imitation. Yes, with Yes, with imitation. So do you think that it is from birth only? There is some heredity or genetic concept or some biological concept which is associated with language acquisition, or it is with practice and imitation only. And when the child is सुन नहीं रहा है अच्छी तरह, दोबारा कुछ बताइए. now when the child is in the womb, at the time when it is conceived, from that time itself, when the parents or when the parents are talking to each other or the surroundings are talking, so they are learning through that itself. It is genetic, and when child is born, he sees the surroundings, how people are talking, and with that he improves that. Okay, and this what you're talking about is related to which theory? From where did you read this? That it is genetic? Now, it is I read one of the theories and from that. I cannot hear properly. Just repeat. My one of the theories I read, so from that only I Okay, we so you studied are about giving. the mother we studied about the mother tongue as well, and This is the generative linguistic theory which we are talking about, which was given in the past. But nowadays, we are thinking that language is not inborn. Okay, nowadays it is that language is only acquired through practice and with the environment. When the child comes in this world, okay, that time only the language acquisition starts. So this is the theory which now we are following. You are talking about the previous theory which is given by the previous linguists. Okay. So let me admit one more student. So Noam Chomsky, if like he told all these things that if people learn language by conditioning and imitation, then why do they understand and produce sentences that they have never heard before? Okay, so he was of the view that language is acquired not by imitation, not only by imitation, but also there is some biological device in the brain of the child with which the language is acquired. And that device in the brain becomes bigger and bigger with the growth of the child. Okay, so what he said is that all people are genetically equipped with an innate language learning faculty. This we have not been able to prove this, and many people were against this theory. So in this answer, you will also write the views or the arguments which are against this theory, and also you will write the arguments of Noam Chomsky. Uh, you will write 7 to 8 points which favor his views according to him how it is genetically related language acquisition. Okay, so he said that all people are genetically equipped with an innate language learning faculty. यहाँ तक समझ में आ गया है? कुछ डाउट है तो पूछो. चलो मैं और समझाती हूँ पहले, then only I'll ask you. So he nativist approaches claim that some aspects of language learning involve innateness. ठीक है, कि बॉर्न जब होते हैं उससे पहले ही उसके अंदर कुछ ऐसा डिवाइस है कि लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाती है.
So nativists argue that we are born with a genetic capacity to acquire the language. There are two main nativist positions. तो ये आप छोड़ सकते हो ये वाला इससे आगे देखो. So universal grammar जो चॉम्स्की ने दी है, it suggests that there exists a set of innate universal principles common to all the languages. ठीक है, तो सारी जो भी लैंग्वेजेस है या मदर टंग है, वो उसमें कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमन बीइंग एक्वायर करता है. सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर. जो भी वो कॉमन है सारे लैंग्वेजेस में रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल grammar. That is a set of innate universal principles जो इनबॉर्न ही acquire किए जा सकते हैं. So universal grammar proposes that all human beings are genetically equipped with the abilities which enable them to acquire the language. ठीक है कि सब ह्यूमन बींग्स के अंदर पहले से ही एक डिवाइस है जिससे वो अक्वायर कर सकते हैं सारी लैंग्वेजेस एंड करेक्ट ग्रामर के साथ वो बोल भी सकते हैं. सो दिस वाज द व्यू गिवन इन 2000 बाय ब्राउन. देन चॉम्स्की इनिशियली called this genetic faculty as language acquisition device. ये important है और आपकी बुक में भी लिखा है फर्स्ट पेज के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये दिया है चॉम्स्की ने. उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज एक्वायर करते हो या मदर टंग जो चाइल्ड एक्वायर करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिवाइस व्हिच इज देयर इन द चाइल्ड्स ब्रेन एंड दैट डिवाइस उसका नाम क्या है? व्हाट इज दैट डिवाइस कॉल्ड? बताओ, अभी बताया मैंने. अंकिता, are you here? Some language Yes, acquisition ma'am. device. हाँ बताओ. Ma'am, language acquisition device LAD. Yes. So that is called LAD, that is language acquisition device. Okay. Hmm. चलो फिर इससे आगे देखो. So this is the language acquisition device which is already आप देख सकते हो अलग अलग मैं फोटोज तो दिखा रही हूँ कि सेम ही पेज दिख रहा है आपको? मैम अलग अलग पेज दिख रहा है. अभी फोटो दिख रही है आपको? ब्रेन दिख रहा है? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस चॉम्स्की ने जो बोला है वो जैसे ब्रेन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड फैकल्टी फॉर एक्वायरिंग द लैंग्वेज. ठीक है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, दैट इज LAD. तो ये पूरा भी आपने लिखना है और LAD भी लिखना है, सिर्फ LAD मत लिखना, उसका फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में भी आपने. सो ये जो है LAD जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, इसको फिर यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो इससे अक्वायर कर सकते हैं. कोई भी लैंग्वेज की यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं हर लैंग्वेज के, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उसको अक्वायर कर सकता है लैंग्वेज को के अंदर से. दिस इज अ कंप्यूटेशनल सिस्टम व्हिच इज देयर इन द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग व्हेन ही और शी इज बोर्न अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्की. ठीक है, और ये जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग ग्रो होता है वैसे वैसे ये जैसे जैसे लैंग्वेज अक्वायर करते हैं वैसे वैसे ये और बिगर होता जाता है. जिसके पास ज्यादा लैंग्वेज एक्वायर पावर है या उसने ज्यादा लैंग्वेजेस लर्न की है तो उसका और ज्यादा बड़ा हो जाता है ये डिवाइस अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्की. In the universal grammar theory, the universal principles form are mental representation of the language. The mental grammar mediates between the sound and meaning of the language. तो जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो ज्यादातर आपका जो LAD है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जस्ट लेट मी एडमिट वंस. तो जो LAD की बात हम कर रहे हैं वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स लैंग्वेज की जो है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज जो है या ग्रामेटिकल पिक्यूलियरिटीज जो लैंग्वेज की है वो
अक्वायर करने के लिए हेल्प कर सकता है। और जो मेंटल ग्रामर है वो है साउंड एंड मीनिंग के साथ रिलेटेड। तो जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो ज्यादातर साउंड एंड मीनिंग के साथ नहीं रिलेटेड है। और चॉम्स्की ने मीनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, चॉम्स्की ने ग्रामर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज को। ठीक है, सो यूनिवर्सल ग्रामर इज रिलेटेड टू मोस्टली द grammatical features of a language. Now Chomskyan view of the language, जो आपकी बुक के अंदर भी है। Chomsky views universal grammar as a part of the brain। ठीक है, जो ब्रेन के अंदर जो मैंने अभी पार्ट आपको दिखाया, that is called LAD, that is language acquisition device। उसके अंदर यूनिवर्सल ग्रामर अक्वायर की जाती है अकॉर्डिंग टू Chomsky। In other words, in human mind there is a separate module belong to the language, which belongs to the language। In Chomskyan view, human language is modular in two ways। First क्या है, formal linguistic principles are separate from other forms of our cognitive functions। These principles are mainly independent of the role of language, role the language plays in the communication। Second क्या है, those principles themselves are independent of each other within the language module। For example, formal structures of phonology may be separate from the formal structures for syntax। ठीक है, इसको पढ़ो फिर समझो क्या है इसका मीनिंग 1 मिनट में, और मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है विद फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट विच वी हैव रेड जस्ट नाउ। बताओ। इसमें ज्यादातर मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है दैट इज द लास्ट लाइन, जो है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर्स फॉर फोनोलॉजी अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की मे बी सेपरेट। फोनोलॉजी जो है इट इज रिलेटेड टू द साउंड। ठीक है, और जो भी आप बोलते हो उसके साथ साउंड की रिप्रेजेंटेशन है ना फोनोलॉजी, एंड वो सेपरेट है अकॉर्डिंग टू है फॉर्मल स्ट्रक्चर्स फॉर सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है वो है सेंटेंस फॉर्मेशन और आपके स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं माइंड के अंदर एंड पैटर्न्स जो हैं फॉर द लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो है ये सेपरेट चीज है फॉर चॉम्स्की एंड फोनोलॉजी सेपरेट फॉर चॉम्स्की। तो ये जो दोनों जो चीजें हैं अकॉर्डिंग टू हिम फॉर्म्स ऑफ द कॉग्निटिव फंक्शंस। तो ये जो है, जो मैंने पहले भी बात की है, जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो सिंटैक्स के साथ रिलेट करता है, दैट इज स्ट्रक्चर्स या कैसे आप ग्रामर फॉर्म करो, कैसे आप सेंटेंसेस फॉर्म करोगे, जो यूनिवर्सल ग्रामर है। और जो यूनिवर्सल ग्रामर नहीं है, दूसरा पार्ट है लैंग्वेज का, जो मतलब उसके माइंड के साथ नहीं रिलेट करता है, जो एलएडी के साथ नहीं रिलेट करता है, दैट इज फोनोलॉजी। दैट इज द हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल। ठीक है, इसको ज्यादा डीपली आपको लिखने की जरूरत मतलब समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके एग्जाम में जितना है आप उतना ही कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी थ्योरी है एंड वास्ट काफी चीजें हैं इसके अंदर डीप जो है। ठीक है, तो एक चीज जो समझने की बात है दैट इज एलएडी, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दैट हैज बीन गिवन बाय चॉम्स्की एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन व्हिच हेल्प्स इन द लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है मैम, सेकंड पॉइंट बता दो। कौन सा वाला? इसी पेज पे जो सेकंड पॉइंट है, इन दिस फ्रेमवर्क। हाँ नहीं, जो अभी मैंने समझाया वो आ गया समझ में सारा कुछ? यस मैम। In this framework, language uses comprehension and production. It is thought to be based upon an abstract linguistic system, a mental representation of the grammar. It is thought to be based upon an abstract linguistic system, a mental representation of the grammar. सेम ही चीज है कि लैंग्वेज यूज जो है वो जो एलएडी की हमने बात की है वो एक मतलब
एक एब्स्ट्रैक्ट लिंग्विस्टिक सिस्टम है, इट इज नॉट विजिबल इन द ब्रेन, ठीक है। और वो एक इमेजिनरी चीज है जो एलईडी जो डिवाइस है, इट इज एन इमेजिनरी थिंग विच इज देयर इन द ब्रेन एंड इट इज एब्स्ट्रैक्ट लिंग्विस्टिक सिस्टम ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रामर, मोस्टली ग्रामेटिकल रूल्स उसके अंदर होते हैं, मेनली जो सिंटैक्स के साथ रिलेटेड। ये वाला कर लो आप। Certain properties of the human mind are biologically determined and specialized for language learning. ठीक है, according to Chomsky. Children start acquiring the language with these innate linguistic properties. ठीक है, innate linguistic properties, that is universal grammar. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, फिर तो यूनिवर्सल थ्योरी जो है, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी एनालाइजेस दीज प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द हाईली एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर व्हिच कंस्ट्रेन ऑल द ह्यूमन लैंग्वेजेस। जो सारी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर ग्रामेटिकल पिक्यूलियरिटीज है या एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स हैं, जो हमें मतलब हम उनको देख नहीं सकते मगर बोलने में उनको यूज करते हैं, जो हम बच्चे को ज्यादा समझा नहीं सकते, वो भी वो बच्चे अक्वायर कर लेते हैं कोई कोई, क्योंकि उनके अंदर एक जो डिवाइस होता है वो अच्छी तरह से डेवलप होके आता है, इसीलिए वो इनेट प्रॉपर्टी है, तो वो अच्छी तरह से बच्चे जो है वो अक्वायर कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल ग्रामर जो भी है सारी लैंग्वेजेस के अंदर वो अक्वायर कर सकते हैं। The UG includes not only specific rules of a particular language but also general principles which belong to all the languages. ये नहीं है कि सिर्फ मदर टंग को अक्वायर कर सकेगा स्पेसिफिक रूल्स मदर टंग के या फिर पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है, मगर वो जनरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं दैट इज कॉमन टू मेनी लैंग्वेजेस, जैसे हिंदी और पंजाबी की काफी चीजें कॉमन होंगी ग्रामर को रिलेट करके, तो वो चीजें वो अक्वायर कर पाएंगे जो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और वो चीजें जो वो अक्वायर कर सकते हैं इतनी जल्दी वो आपके यूनिवर्सल ग्रामर के साथ रिलेट करता है, दैट इज because of the LAD, that is the language acquisition device which is present in the brain. फिर all the individuals are equally endowed with these abstract and linguistically significant principles. सारे human beings के अंदर LAD है जो हेल्प करता है उनको ये जो प्रिंसिपल्स हैं लैंग्वेज के उसको अक्वायर करने के लिए। Thus these principles are universal principles. ये यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया, हाउ डज यूनिवर्सल ग्रामर रिलेट टू द लैंग्वेज एक्विजिशन, ये कैसे हेल्प करता है लैंग्वेज अक्वायर करने के लिए चाइल्ड के लिए। चिल्ड्रन कैन इजीली लर्न द लैंग्वेज व्हिच इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर विद, ये बोला है चॉम्स्की ने, मैं नहीं बोल रही हूँ, विद लैंग्वेज इनपुट अलोन दे कैन नॉट ओवरकम दीज कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अडल्ट ग्रामर। वो बोल रहे हैं कि जब घर के अंदर बातें हो रही हैं या पेरेंट्स बातें कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा करेक्ट लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, इतने ज्यादा करेक्ट सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं, तो बच्चे को कैसे पता चलता है कि करेक्ट सेंटेंस क्या है, उसकी ग्रामर कैसे है, सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो उनको कैसे एक सेंटेंस में डाल के उन चीजों को बोलना है। हाउ डज द चाइल्ड कम टू नो व्हेन इनपुट इज नॉट गिवन टू द चाइल्ड। जब घर के अंदर बातें ही नहीं होती हैं ग्रामेटिकली तो फिर बच्चे को ग्रामर के रूल्स के बारे में कैसे पता चलता है, चॉम्स्की ने ये बोला है। Therefore, there must be something else, कुछ और भी होगा बच्चे के दिमाग के अंदर जिसके कारण कि वो ये सारे जो है ना पॉइंट्स, ये है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ चॉम्स्की थ्योरी, वो अपने फेवर में बता रहे हैं कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि LAD प्रेजेंट है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। मस्ट बी समथिंग एल्स which enables them to learn the language with relative ease and speed. What can it be? फिर वो बोलता है चॉम्स्की की एंड इनेट लैंग्वेज फैकल्टी और मैकेनिज्म द यूनिवर्सल ग्रामर, या फिर यू कैन राइट ओवर हियर LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इनेट लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स हेल्प वेयर द इनपुट फेल्स, इनपुट यहाँ पे जो पेरेंट्स ने दिया है या एनवायरनमेंट ने दिया है जो भी इनपुट उसको लैंग्वेज का। Thus UG is theoretically based on a negative argument insufficiency of the input, कि मतलब sufficient input नहीं मिलता है, तो आर्ग्यूमेंट ये की है चॉम्स्की ने कि सफिशिएंट इनपुट नहीं मिलता है बच्चे को, इनसफिशिएंट इनपुट मिलता है, इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे को ग्रामर कैसे आ गई है, बड़ों से ज्यादा अच्छी तरह भी कई बार आ जाती है बिकॉज देयर इज
language acquisition device which is present in the brain. अब एक और चीज है जो है वो कह रहे हैं यही सेम चीज है द पॉवर्टी ऑफ स्टिम्युलस की स्टिम्युलस बच्चों को कईयों को कम मिलता है घर के अंदर इतना स्टिम्युलस नहीं मिलता है फिर वो कैसे लॉजिकल सीक्वेंस में लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं तो इसीलिए चॉम्स्की बोल रहे हैं कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये भी पॉवर्टी ऑफ स्टिम्युलस भी वही सेम चीज है कि इनपुट उनको कम मिल रहा है मगर फिर भी वो बच्चा अक्वायर कर लेता है चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस सेंटेंसेस दैट दे हैव नेवर हर्ड बिफोर अगर इमिटेशन खाली होती तो फिर तो वो सिर्फ सुने हुए वर्ड्स बोलते फिर उन्होंने कैसे दूसरे वर्ड्स भी अक्वायर कर लिए विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दे नो दैट सर्टन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आर अनग्रामेटिकल उनको पता है बच्चे को कि मम्मी ने ये रॉन्ग सेंटेंस बोला है इसको ऐसे नहीं बोलना ऐसे बोलना है तो हाउ डिड द चाइल्ड कम टू नो दैट द पेरेंट हैज स्पोकन अनग्रामेटिकल सेंटेंस certain interpretations of the sentences are not possible in certain contexts. बच्चे को कैसे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे प्रॉपर नहीं है तो ये सारी चीजें बोलिए नॉम चॉम्स्की ने that there is a language acquisition device with the help of which the child can acquire the language that is mainly the mother tongue. ठीक है ये भी वही चीज है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस बच्चे को मिलते हैं मगर वो प्रोड्यूस कर लेते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंस पॉसिबल सेंटेंसेस विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग तो वो कैसे प्रोड्यूस कर लेते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द एलएडी व्हिच इज प्रेजेंट दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस फिर है दे आर यूजुअली एक्सपोज टू द अनग्रामेटिकल इनपुट्स जो भी इमिटेशन वगैरह इनपुट उनको आ रही है अनग्रामेटिकल है but they can produce grammatically appropriate output. The input cannot explain the child's linguistic competence. Hence, children must bring innate knowledge to handle the task of first language acquisition. ज़्यादातर हम ये first language acquisition की बात कर रहे हैं. Let me admit the child. ठीक है एक और मैं आपको दिखाती हूँ ये दिख रहा है what is core and peripheral grammar in the universal grammar एक वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रही है की स्लाइड ही दिख रही है मैम स्लाइड ही है अच्छा ये दिख रही है अब यस मैम यस मैम अब देखो इसके अंदर ये बुक के अंदर तो नहीं है मगर मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ढूंढा था कहीं से कि कोर एंड पेरिफेरल ग्रामर क्या है यूनिवर्सल ग्रामर के अंदर ठीक है यूनिवर्सल ग्रामर जो है उसके अंदर इन द यूनिवर्सल कोर grammar core and peripheral grammar can be defined as a set of rules that the child learns as a part of the language acquisition. ठीक है इसके अंदर दो पार्ट्स हैं एक कोर ग्रामर है और एक पेरिफेरल ग्रामर है According to the universal grammar, there are certain universal principles and parameters that form the framework of our mind. With the help of this framework, a child develops the language. The universal rules that the child discovers form the core grammar of its language. ठीक है तो हमने अभी बात की थी कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ब्रेन के अंदर जिससे लैंग्वेज एक्वायर करता है बच्चा तो फिर वो जो लैंग्वेज एक्वायर करता है उसको हम क्या बोलते हैं मतलब कौन सी ग्रामर बोलते हैं जो हमने अभी बातें की थी बताओ कौन सी ग्रामर के बारे में हमने बात की थी जो लैंग्वेज एक्वायर करता है जो सभी लैंग्वेजेस के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रामर यस तो यूनिवर्सल ग्रामर जो है यूनिवर्सल रूल्स जो है हर लैंग्वेजेस के तो यूनिवर्सल रूल्स दैट द चाइल्ड डिस्कवर्स फॉर्म द कोर ग्रामर ऑफ इट्स लैंग्वेज
तो जो भी यूनिवर्सल रूल्स हैं जो हर लैंग्वेज के अंदर हैं, जो चाइल्ड अक्वायर कर सकता है, उसको हम कोर ग्रामर का पार्ट कहते हैं, कोर ग्रामर है वो, ठीक है। एंड द प्रिंसिपल्स विच आर यूनिक आर नोन एज द पेरिफेरल। और जो बाकी चीजें हैं, जो लैंग्वेज, हर लैंग्वेज की अलग अलग है, जैसे हिंदी और पंजाबी में जो सिमिलैरिटी होगी, ठीक है, ग्रामेटिकल रूल्स सेम सेम होंगे, वो बच्चा अक्वायर कर लेगा क्योंकि वो यूनिवर्सल रूल्स हैं, हर लैंग्वेज के अंदर वैसे वैसे रूल्स होंगे, तो वो कोर ग्रामर हो गया। और जो हर लैंग्वेज की अलग यूनिक चीजें हैं, हिंदी की अलग अलग यूनिक चीजें हैं, इंग्लिश की कुछ अलग होंगी, है ना, पंजाबी की अलग कुछ होगी, यूनिक चीजें हैं जो उसी लैंग्वेज की है, वो पेरिफेरल ग्रामर है, पेरिफेरी का पार्ट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल ग्रामर। The whole complex apparatus is concerned with the crucial central area of syntax defined as the core grammar। अब जो core grammar है, जो यूनिवर्सल ग्रामर के साथ रिलेट करता है, वो एरिया ऑफ सिंटैक्स है। और हमने पहले भी बात की है कि सिंटैक्स जो है वो रिलेट होता है सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है, ये मीनिंग के साथ रिलेट नहीं होता है। मीनिंग जो होता है वो सिमेंटिक का पार्ट होता है। कोई एडमिट होना चाहता था, भी दिख नहीं रहा है कोई भी। Chomsky developed the idea that each sentence in a language has two levels of representation। चाहे ये आप छोड़ सकते हो या ये छोड़ दो जाए, ये मैं डाल दूंगी, वैसे आप रीड कर लेना अगर आपने पढ़ना होगा कि there are two parts in a sentence, that is deep structure and the surface structure। यहाँ से कर लो। According to him, the rules that the child discovers in a language with help of universal grammar form the core grammar of his language, ठीक है। Not all the rules are core rules। Every language also contains elements that are not constrained by the universal grammar। These compose the periphery, जो हमने अभी बात की थी। Usually the peripheral rules are those that are determined from the history of the language, that have been borrowed from the other languages, or that have arisen accidentally, ठीक है। तो यहाँ पे चॉम्स्की ने मेन क्या कहा है, thus the child's knowledge of his mother tongue is made up of rules determined by the universal grammar, the core, and those that have been learned without the help of the universal grammar are the periphery। इसका मतलब ये है कि जो भी मदर टंग रूल्स, मदर टंग है जो बच्चा अक्वायर करता है, और उसके जो रूल्स हैं वो ज्यादातर उसके यूनिवर्सल ग्रामर का एक पार्ट है। यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो है कोर ग्रामर, ठीक है। और वो बाकी लैंग्वेजेस लर्न करता है विद इमिटेशन या एनवायरनमेंट की हेल्प के साथ, जिसमें आपका एलएडी ज्यादा काम नहीं करता है, वो है पेरिफेरल ग्रामर, वो पेरिफेरी का पार्ट है, ठीक है। वो दूसरी लैंग्वेजेस हो सकती है, या फिर जो यूनिक है, हर लैंग्वेज अलग अलग है, वो वाले रूल्स जो हैं वो पेरिफेरी के पार्ट हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अनडिनाइबली बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड, ठीक है, बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है दिमाग के अंदर बच्चे के। एज चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम वेरिंग कल्चर्स एंड लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट्स प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ लैंग्वेज एट द सेम स्टेजेस। Chomsky proposes that this is a direct result of the universal grammar, which is an inherent part of every human being, ठीक है। फिर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, वही हमने जो बात की थी कि पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस होने के बावजूद भी बच्चा अच्छी तरह से अक्वायर कर पा रहा है जो भी ग्रामर वगैरह है, तो इसीलिए चॉम्स्की बोल रहे हैं कि देयर इज अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो चॉम्स्की बोल रहा है कि जो बच्चा है सिर्फ इमिटेशन से नहीं लर्न करता है, ही इज also learning from some other innate property which is there in the brain। ये वही बात की है property of stimulus की, जो हमने पहले पढ़ लिया। Definition of universal grammar according to Chomsky। Let us define the universal grammar as a system of principles, conditions and rules that are elements or properties of all the human languages, not merely by accident but by necessity, ठीक है। जो ज्यादा लैंग्वेजेस वैसे ही बंदा लर्न कर लेता है, जैसे कुछ रूल्स हैं जो कॉमन नहीं है लैंग्वेजेस के,
वो एक्सीडेंटली लर्न कर लेता है, वो यूनिवर्सल ग्रामर का पार्ट नहीं है। मगर यूनिवर्सल ग्रामर जो है that is more related to the syntax, which is uh, which is required um, for जैसे नेसेसिटी यहाँ पे लिखा है, तो फिर वो नेसेसरी है कि वो अक्वायर की जाए फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. तो यहाँ पे जो यूजी है वो क्या है? व्हाट इज यूजी? universal grammar, यस, यूनिवर्सल ग्रामर। तो जो यूनिवर्सल ग्रामर है, ये ये कौन सा पार्ट हेल्प करता है अक्वायर करने के लिए? ये इमिटेशन से होता है कि ऐसे इमिटेशन से होता है कि कैसे होता है यूनिवर्सल ग्रामर जो अक्वायर करता है? पे बताओ, देख के सुन के प्रैक्टिस के साथ यूनिवर्सल ग्रामर होती है कि कोई होती है चीज दिमाग के अंदर जिसके साथ intent communication, आई कैन नॉट हियर। Ma'am, through LAD. Yes, that is language acquisition device. That is universal Device. grammar, ठीक है। तो ये कोर जो है, कोर जो है, हमने अभी बात की थी कि कोर जो है वो मिडिल में है, ठीक है। That is this is only the imaginary diagram which I am showing you. इसको आप एरोज नहीं भी बना के शो कर सकते हो। तो जो कोर ग्रामर है वो क्या था? जो सिंटैक्स के साथ रिलेट होता है लैंग्वेज के, ठीक है, और इट इज नेसेसरी पार्ट की इसके साथ लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। तो और L1 यहाँ पे है जो आपका कह सकते हो आप मदर टंग या फिर फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, उसकी हो जाती है, और दैट इज रिलेटेड टू द कोर ग्रामर। और जो पेरिफेरल ग्रामर है, जो बाहर वाला सर्कल है, वो बाकी लैंग्वेजेस हैं जो आपकी इमिटेशन के साथ आती है, या फिर जो प्रिंसिपल्स कॉमन नहीं है लैंग्वेजेस के अंदर, अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, वो एनवायरनमेंट के साथ रिलेट होता है जब बच्चा, तब उसके अंदर पैदा होती है वो ग्रामर। तो दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल ग्रामर, ठीक है। तो पेरिफेरल ग्रामर जो है वो बाहर है, उसके अंदर यूनिवर्सल ग्रामर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो जो पेरिफेरल ग्रामर है वो थोड़ा सा ही लिंक है उसका यूनिवर्सल ग्रामर के साथ, या फिर आप कह सकते हो कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो हेल्प करता है आपके कोर लैंग्वेज को अक्वायर करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अब बुक ले आओ सारे, बुक के अंदर मैं बता देती हूँ आपको। बुक के अंदर देखो, ले आए हो कि नहीं? Yes, ma'am. बाकी बाकी ले आए हो? Yes, ma'am. चलो फिर खोलो, चैप्टर कौन सा है? 16 है, 16 है। 16 में हाँ हाँ, 13 13 which is the chapter 1 3 13 okay, whichever for me it is 16. Okay, so see the first paragraph over here, you can do that, which is Noam Chomsky is an American linguist, philosopher, and cognitive scientist. He is also described as the father of modern linguistics. ठीक है, नॉम चॉम्स्की believes, next paragraph भी कर लो, believes that children are born with an inherent ये वाला पैराग्राफ पूरा कर लो।
ठीक है, जहाँ तक आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स तक कर लो। Adult speech is often broken up and even sometimes ungrammatical. जहाँ पे एलएडी का जिक्र हुआ है, ये सारा एलएडी के बारे में बताया है इसके अंदर कि सिर्फ इमिटेशन से बच्चा नहीं लर्न करता, क्योंकि बच्चा फाइंड आउट कर लेता है कि अडल्ट ग्रामर जो है वो अनग्रामेटिकल है कई बार। यहाँ तक कर लिया आपने? Yes, ma'am. नेक्स्ट पेज के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में थोड़ा फर्स्ट पैराग्राफ कर लो, वो बताया है। ठीक है, और बाकी आप ये जो है, ये जो बैबलिंग है, वन वर्ड अटरेंसेस, ये छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा चॉम्स्की ने दी है। दिस इज जस्ट रिलेटेड टू द लैंग्वेज एक्विजिशन। अब पैराग्राफ 1 2 3 4 5 7th पैराग्राफ कर लो, उसके अंदर लिखना है सेकेंड पेज के अंदर, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन का सेकेंड पेज जो है उसके अंदर लिखा है लैंग्वेज एक्विजिशन यूजुअली रेफर्स टू द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। मिल गया? which language acquisition refers to the first which studies of native language. This is different from the acquisition of additional languages. हो गया? Yes, ma'am. चलो, अब नेक्स्ट देखो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट पेज खोलो, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हेडिंग है, उसके अंदर सेकेंड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट प्रपोज्ड बाय नॉर्म चॉम्स्की in 1960s. The LAD concept is an instinctive mental capacity which enables an infant to acquire and produce the language, जो हमने अभी पढ़ा था। It is a component of the nativist theory of language. Nativist के बारे में भी मैंने थोड़ा बताया था आपको अभी। This theory asserts that humans are born with the instinct or innate facility for faculty या आना है शायद पता नहीं, for acquiring the language. फिर ये चॉम्स्की और जेनरेटिव ग्रामर, ये हमने अभी जो पढ़ा था, ये आप कर सकते हो। 2 पैराग्राफ्स जेनरेटिव ग्रामर के बारे में क्या बताया है। According to the Chomsky, generative grammar should render explicit the implicit knowledge of the speaker. इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर डिवाइस है वो ऑलरेडी इनहेरेंट है, जो उसको नॉलेज प्रोवाइड करता है, एंड वो नॉलेज वो बाकियों को दे रहा है। ठीक है, so there is knowledge in the speaker already when he is born, and then that is the language acquisition device. Okay, so that helps him to acquire the language. He proposed a set of well-defined rules to generate required sequence of words. Individuals combination of the words does not make sense. Make sense तक कर लो। नेक्स्ट देखो चॉम्स्की ऑन सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि लैंग्वेज के मीनिंग के बारे में, कि हर सेंटेंस का मीनिंग ऑफ द सेंटेंस के साथ रिलेटेड होता है। तो चॉम्स्की ने ज्यादातर सिमेंटिक्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। He has not given any importance to the semantics. Okay, according to the linguistic theory, the concepts of the grammar are not based upon semantics, but linguistic theory should provide an explanation to the semantic phenomenon. तो यहाँ पे चॉम्स्की ने क्या बोला है, that the field of linguistics does not include the study of meaning and reference and the use of language. तो यहाँ पे
सिमेंटिक्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी है चॉम्स्की ने, ये आप पॉइंट लिख सकते हो। मगर सिमेंटिक्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, ये रियलिटी है, ठीक है। तो एविडेंस टू सपोर्ट द चॉम्स्की थ्योरी, ये आपने नंबरिंग करके लिखनी है जो एविडेंसेस हैं चॉम्स्की ने दिए हैं फॉर हिज थ्योरी। सो दैट इज एक बार ये रीड कर लेते हैं कि कौन कौन से एविडेंसेस चॉम्स्की ने दिए हैं टू सपोर्ट हिज थ्योरी। और उसके अंदर इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया है जो कोर ग्रामर के बारे में, पेरिफेरल ग्रामर के बारे में, और जो भी हमने स्लाइड्स में पढ़ा है कि चॉम्स्की ने लैंग्वेज के बारे में जो भी बताया है, वो आप इससे पहले लिख सकते हो। जो भी एविडेंसेस आपने लिखने हैं उससे पहले आप लिख सकते हो, और या फिर आप एविडेंस के अंदर ही उन पॉइंट्स को डाल के नंबरिंग कर सकते हो दैट दीज आर द पॉइंट्स व्हिच द चॉम्स्की हैज गिवन टू सपोर्ट हिज थ्योरी ऑफ एलएडी। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। वो मैं आपको डाल दूंगी जो भी स्लाइड्स थी फोल्डर के अंदर नीट रिकॉर्डिंग्स में। तो ये पहला वाला जो है ये पढ़ो, और माइंड के अंदर मुझे बताओ इसके साथ आपको क्या समझ में आ रहा है। And when children learn to speak, they don't make grammatical mistakes. And they know where the subject is, they know where the object is. They don't. It is not audible. Speak little louder. Yes, please repeat. हाँ जी, जल्दी से बता दो कोई भी। Ma'am, the children who are learning to speak, they never make any grammatical or syntax mistakes while speaking. So this shows that. Okay, very good. So Chomsky says that children do not make any wrong order of the subject, verbs, or and the objects. Okay, so they do not make any grammatical errors. इसीलिए वो बोल रहे हैं कि there is LED present in the mind of the children. फिर सेकंड क्या है, if an adult deliberately said an incorrect grammatical sentence, ठीक है, तो चाइल्ड जो है वो नोटिस कर लेता है जल्दी से। सो दिस इज अनदर पॉइंट इन एविडेंस और इन फेवर ऑफ चॉम्स्कीज थ्योरी। थर्ड क्या है, पढ़ के बताओ कोई। अमनप्रीत आप बताओ थर्ड पॉइंट क्या है। Children often say things that are ungrammatical, such as "mama ball." Can't have learned passively. हाँ, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो। Children often say things that are ungrammatical as mama bought, which they cannot have learned passively। ये वाला पॉइंट तो मुझे लग रहा है कि अगेंस्ट है चॉम्स्की की थ्योरी पे। Yes, ma'am. तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे तो ये कह रहा है कि सब कुछ ग्रामेटिकल है, वो इनकरेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि चिल्ड्रन ऑफन से थिंग्स दैट आर अनग्रामेटिकल सच एज मम्मा बॉल व्हिच दे कैन नॉट हैव लर्न। ये तो कह रहा है कि इमिटेशन से लर्न कर रहा है यहाँ पे, कि पैसिवली लर्न नहीं कर रहा है। कि क्या क्या कह रहा है कि एलएडी से लर्न कर रहा है ये। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये कह रहा है कि जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो करेक्ट रख रहा है बच्चा मम्मा बॉल। ये जो अनग्रामेटिकल वर्ड है ये हटा सकते हैं हम यहाँ से, ये कर सकते हैं यहाँ पे। क्या ये पॉइंट आप हटा सकते हो। मिस्टेक्स सच एज आई ड्रॉड इंस्टेड ऑफ आई ड्रू। तो
दे आर नॉट लर्निंग थ्रू इमिटेशन अलोन। क्योंकि अगर वो इमिडिएट, ठीक है पॉइंट, क्योंकि अगर वो सिर्फ इमिटेशन से लर्न कर रहे होंगे तो फिर वो बोल रहे होंगे आई ड्रू, मगर वो क्या बोल रहे हैं आई ड्रॉट। इसका मतलब बच्चे को कैसे पता चला कि आई ड्रॉट बोलना है, आई ड्रू नहीं बोलना है? बिकॉज वो इमिटेट करके नहीं लर्न कर रहा है, वो एलईडी से लर्न कर रहा है। Chomsky used the sentence colorless green idea sleep furiously, which is grammatical, although it doesn't make sense. ये grammatical sentence है मगर इसमें कोई meaning नहीं है, ये sense नहीं बना रहा to prove this theory. He said it shows that sentences can be grammatical. ऐसे मतलब sentences बच्चे बनाते हैं, इसने ये बोला है चॉम्स्की ने। He said it shows that sentences can be grammatical without having any meaning. ठीक है, that we can tell the difference between the grammatical and the ungrammatical sentence without ever having heard the sentence before. हमने कभी भी सुना नहीं होता वो sentence, मगर हमें पता होता है कि grammatically wrong है ये sentence। और हमें कैसे पता चलता है? Because there is already a device in the brain which helps us to know that the sentence we are speaking is ungrammatical. फिर जो अगेंस्ट है चॉम्स्की के, वो भी आपने लिखने हैं एविडेंसेस। उसके अगेंस्ट कौन कौन से हैं? क्रिटिक्स ने क्या बोला है? क्रिटिक्स ऑफ चॉम्स्कीज थ्योरी से दैट ऑल्दो इट इज क्लियर, नेक्स्ट पेज खोलो। Although it is clear that children don't learn language through imitation, वो कह रहे हैं कि हमने मान लिया कि इमिटेशन से नहीं बच्चे सीख रहे हैं, इमिटेशन भी है, एनवायरनमेंट भी है, और भी कॉजेज हैं, मगर हम ये कैसे, आप ये कैसे प्रूव करोगे कि उसके माइंड के अंदर एक डिवाइस है? हाउ विल यू प्रूव दैट? और वो भी आप एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हो, आपकी थिंकिंग है, आपकी इमेजिनेशन है कि देयर इज अ डिवाइस, तो हाउ कैन यू से दैट देयर इज अ डिवाइस? ठीक है, तो ये जो है दैट इज, वो बोल रहा है कि मान लिया कि इमिटेशन नहीं है, बट हाउ हाउ विल चॉम्स्की प्रूव दैट देयर इज अ डिवाइस, कि एक डिवाइस ही है जो हेल्प कर रहा है फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज लर्निंग कुड मेबी बी थ्रू द जनरल लर्निंग के साथ भी हो सकती है, एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज के साथ भी हो सकती है, एंड इंटरेक्शन के साथ भी हो सकती है जो वो बाकी लोगों के साथ कर रहा है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि एलईडी उसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है? चॉम्स्की डिफरेंशिएट्स बिटवीन द कॉम्पिटेंस एंड द परफॉर्मेंस। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि कॉम्पिटेंस जो है और परफॉर्मेंस के अंदर चॉम्स्की जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा है, मगर बाकी क्रिटिक्स इसको मान नहीं रहे हैं, क्योंकि चॉम्स्की बोल रहा है कि जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादातर अनग्रामेटिकल होती है। परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पे ये है कम्युनिकेशन, ठीक है, और जो कॉम्पिटेंस है वो उसका वो कोर ग्रामर के साथ रिलेट कर रहा है कॉम्पिटेंस को, कि जिसको कोर ग्रामर आती हो या यूनिवर्सल ग्रामर आती हो अच्छी तरह, वो कॉम्पिटेंट बनता है। ठीक है, तो फिर वो क्या कह रहा है चॉम्स्की, दैट कॉम्पिटेंस इज व्हाट दे इंस्टिंक्टिवली नो अबाउट द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। सिंटैक्स के साथ रिलेट कर रहा है कॉम्पिटेंस को, ठीक है, and this is more or less equated with the universal grammar. Chomsky concentrates upon the aspect of the language. He thus ignores the things that people actually say. तो फिर वो इग्नोर कर रहा है परफॉर्मेंस को, इग्नोर कर रहा है कम्युनिकेशन को, इग्नोर कर रहा है इंटरेक्शन को लोगों के अंदर, इग्नोर कर रहा है इमिटेशन को, जिसके साथ एक्विजिशन होती है लैंग्वेज की। द प्रॉब्लम हियर इज दैट ये क्या लिखा है, ये मेरा मिल गया है कि the problem here is that he क्या लिखा है, ये मेरा मिट गया है, Realize. अच्छा इसके अंदर मिट गया है, फोटो कॉपी है ना। he relies upon people's intuitions as to what is right and or wrong। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, चॉम्स्की distinguishes between the core and the central grammar। जो हमने अभी पढ़ा था core grammar, peripheral grammar, चॉम्स्की ऐसे डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये वाला यूनिवर्सल ग्रामर है, ये पेरिफेरल ग्रामर है, मगर ऐसे हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यहाँ तक आप कर सकते हो 3 लाइन्स, ये कर लो। चॉम्स्की डिफरेंशिएट्स बिटवीन द कोर एंड द सेंट्रल ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज व्हिच इज एसेंशियली फाउंडेड बाय द यूजी एंड द पेरिफेरल ग्रामर। वहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो डायग्राम, या फिर जो मैंने आपको पेज दिखाया था उसके अंदर से पॉइंट्स यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। ये 3 लाइन्स कर लो। उसके बाद देखो इसी पैराग्राफ की लास्ट 5 लाइन्स कर लो, क्योंकि बीच वाला आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन्स भी कर लो। टू चॉम्स्की द रियल ऑब्जेक्ट, यहाँ से कर लो, टू चॉम्स्की द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस इज द कोर ग्रामर। कोर ग्रामर को ही ज्यादा ध्यान दिया हुआ है बस,
But how do we determine what belongs to the core and what belongs to the periphery? मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि core के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कि सिंटैक्स है, या मीनिंग है, या फोनोलॉजी है, या मॉर्फोलॉजी है? हम कैसे बोल सकते हैं कि कोर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और पेरीफेरी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? हाउ कैन द चॉम्स्की प्रूव दैट व्हाट इज देयर इन द कोर? ठीक है, कौन कौन से सेंटेंसेस कोर में आएंगे, कौन कौन से सेंटेंसेस पेरिफेरी में आएंगे, कौन सी लैंग्वेज के अंदर कौन सा कोर है, कहाँ से पता चलेगा? तो ये सारा कुछ मिक्सड अप है। दैट इज व्हाई critics are against the theory of Noam Chomsky. तो some observers all the grammar is conventional. वो कह रहे हैं कि ग्रामर ऐसे अलग अलग नहीं है कि यूनिवर्सल हो या पेरिफेरल हो या कोर हो। वो कह रहे हैं सारी ग्रामर एक ही है, वो कन्वेंशनल ग्रामर है, एंड देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन टू मेक द चॉम्स्कियन डिस्टिंक्शन। नहीं करना चाहिए कि ये कोर है, ये पेरिफेरल है, ऐसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं ग्रामर। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट भी छोड़ दो, चाहे ये भी डिफिकल्ट सा है। उसके बाद ये लास्ट वाला ठीक है, बिकॉज ही डिसरिगार्ड्स मीनिंग। मीनिंग को ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ ग्रामेटिकल सिंटैक्स को ध्यान दे रहे हैं या फिर कोर ग्रामर को। तो इसीलिए क्रिटिक्स जो है इस थ्योरी के अगेंस्ट है। दैट इज देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। ओके, फिर बिकॉज ही डिसरिगार्ड्स द मीनिंग एंड द सोशल सिचुएशन इन विच लैंग्वेज इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नॉर्मली प्रोड्यूस कैसे होती है? लिसनिंग से होती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो लिसनिंग के साथ ही बच्चा ज्यादातर सुनता है। तो दैट इज द नॉर्मल thing with which imitation or practice with which the child learns. There is no innate capacity in the child or faculty in the child. He disregards तो ये जो है he disregards in particular the situation in which the child learns his first language. तो ये जो situation है या ये जो environment है, that is very much necessary for the acquisition of the language, ये ignore कर रहा है चॉम्स्की। ठीक है, फिर कंक्लूजन क्या है? चॉम्स्की रिजेक्ट्स द आइडिया दैट ह्यूमन माइंड इज अ क्लीन स्लेट एट बर्थ एंड इज filled in by the experience. एक्सपीरियंस के साथ ही लर्न कर सकते हैं लैंग्वेज को। तो ये चॉम्स्की ने रिजेक्ट की है चीज। So he suggested that there are components of mind which are innately determined about languages and the other systems of knowledge. ठीक है, तो ये आप कर लेना। एक ही क्वेश्चन आएगा इसका नॉम चॉम्स्की का, लैंग्वेज एक्विजिशन के साथ रिलेट करके। ये समझ में आ गया है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। मैं ये जो स्लाइड्स हैं ये ऐड ऑन कर दूंगी सो दैट यू कैन इलैबोरेट योर आंसर। ठीक है, मैम इसके नॉर्मल आंसर में भी क्रिटिसिज्म देंगे, लाइक इफ हाँ दे हाँ, हैव देना है, क्रिटिसिज्म तो जरूरी है बिकॉज ये करेक्ट व्यू नहीं है ना लैंग्वेज एक्विजिशन का। दिस इज नॉट द करेक्ट व्यू, तो क्रिटिसिज्म देना जरूरी है। जितने पॉइंट्स आप ओके मैम। हाँ इन फेवर दोगे उससे ज्यादा पॉइंट्स आप अगेंस्ट दे सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट है?